Okay, okay. Thank you. So what we will do, we will take the same code, है ना, जो part common है. See, see. So this part is common. Now the thing is that I have want to find the length of the string. So what we required the what, the variable or a string. Suppose the name of the string is what. Suppose we are taking name, simple, and we are assuming that size is what, 20, equal to, suppose, then suppose hello world. Suppose we are saying that hello world. hello world, ठीक है. Now what we have to do, we have to use the string length function, strlen function. Now we have to pass the name of the variable in which the value is stored, name. But the question is that whenever we have to store the whatever the length we will get of this name, so that should be what, stored in some variable, yes or no? So that variable should be of what, not character type, but of what, integer type, because the length is calculated in what, number. So we are assuming that int I. Suppose we are taking I as a variable. I. So we are taking I equal to string length. So now what? It will, the string length will calculate the length of this name and it will store into the what, I. So after that storing into I, we have to display it. So what we are doing, we have to print it. Printf, then what, %d your integer, comma I. Now what? Now we are saying that the value which is stored in I is going to display. Finally, we have the get function and it is going to display. Now many of you think that, sir, what is the length of this? Can anyone tell me what is the length of this? What output we will get? Anyone can guess? Anyone? So 11. 11. Anyone? Others? So the answer is correct because it is going to calculate H. देखो see how HELLO कितना हो गया 5, स्पेस के लिए 1 और वो 5 मतलब कितना हो गया 11. करेक्ट है. Is it clear everyone? Show your thumbs if it is clear. ठीक है, very good. So the next function is concat. इसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम करना है आपको. The program will be what, you have to just accept it from the user. Accept this string from the user and calculate its length. ठीक है, ये करना है आप लोगों को. थर्ड वाला फंक्शन जो है concat है. concat हम पढ़ेंगे. Read the concat. Concatenation. It is called as a concatenation. String cat function is used to combine the string. या आप ज्वाइन भी बोल सकते हो, ज्वाइन दिस string. Syntax for str cat function is
strcat cat string 1 comma string 2. So the syntax. So when how it works, then whatever the value we see, whenever we have to combine these things, it means what? At least we should have two strings. We should have what? Two strings. We should have what? Two strings. Like suppose, let's take an example. So with the right as a thread. So copy the previous thing, which is common. See, char name suppose we are taking equal to suppose सचिन वगैरह से हम लोग और बाद में तो अभी हमने क्या किया है, वी हैव डिक्लेयर टू स्ट्रिंग. वन इज द नेम in which we have stored the value Sachin. In the name one we have stored the value Rahul. Now what we have to do, we have to just use the concat function. So we are using string cat function. In this we are passing name as the first parameter, name one as the second function. So in this what, as per the syntax of the string cat, we have passed two parameters. First is the name, second is the name one. Now suppose I want to display it percentage and name one. Second also I am writing for your understanding, so I will make it more clear to you. Printf percentage see, can anyone tell me what will be the output of this first printf and what will be the output of the second one? Anyone can tell me, because already you have done this subject. Sharda Verma, are you there? Sharda Verma. Sharda Verma, Sakshi Dadav. Your voice is not clear clearly. So first one will be Sachin Rahul and second one will be Rahul. ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ आपका जो है. फर्स्ट विल बी व्हाट? सचिन राहुल, है ना, अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. सेकेंड विल बी व्हाट? Rahul. राहुल. ठीक है. ओके. साक्षी यादव, आर यू देयर? रुचिता पाटिल. नकुल शिंदे.
Sir, first will be Sachin Rahul and second will be Rahul Sachin. कैसे क्या होता है मुझे बताओ, कैसे क्या राहुल से सचिन राहुल है? Sir, string will be opposite होगा sir. अपोजिट मतलब क्या? कैसे उसका वर्किंग कैसे बताओ मुझे जरा नकुल। मैंने अभी तक स्टिल आई हैव नॉट सेड कि द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग ना, अभी तक कुछ नहीं डिसाइड। तो आप मुझे एक्सप्लेन करो कि वो कैसे वर्क कैसे करता है स्ट्रिंग कैट फंक्शन। Excuse me, sir. हाँ जस्ट हु इज देयर? Sir, अम्बेश। Ambesh. Sir, हाँ बोलिए अम्बेश। सर जो कॉन्केटिनेशन होगा सर वो किसी कैरेक्टर में नहीं स्टोर होगा? कैरेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते बच्चा, हम लोग स्ट्रिंग में से स्टोर कर सकते हैं। Okay, sir. First thing is that we can't store the string in a word character. Whenever we have to store any string, we should have the string variable. Is it clear, Ambesh? Yes, sir. Okay. And the second thing is that here what we don't need any type of variable because जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन मुझे अभी आप लोग का जरा फीडबैक चाहिए, आंसर चाहिए कि हाउ इट वर्क्स बिकॉज एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई वांट। गिरीश शेडगे। बलजी। हाँ नकुल मला सांगितलं नाही, नकुल बताओ मुझे वैसे कैसे करता है काम नकुल। आपने बताया ठीक है, ठीक अभी आपने जो बताया कि सचिन राहुल है या राहुल है, जो भी आउटपुट आया, तो नेम वन में राहुल क्यों आया? कैन यू टेल मी व्हाई द आउटपुट ऑफ द नेम वन इज राहुल ओनली? नकुल यू मे बी रॉन्ग बट यू शुड ट्राई। हाँ Sir, calls character में राहुल नेम 2 में नेम 1 में राहुल दिया है। नेम वन में राहुल, तो नेम में तो सचिन ही दिया है ना, फिर ऐसा कैसा होगा? सर स्ट्रिंग कैरेक्टर लगाए ना, स्ट्रिंग में कहाँ दोनों लगा साथ। है बताओ मुझे, आप बताओ मुझे। ये कैसे दिखाओ सर? सर मैं आया था। हाँ सर मैं ट्राई करूँ? हाँ करो करो, पहले नकुल को तो ट्राई करने दो, पहले नकुल ट्राई कर रहे हो। स्ट्रिंग कैरेक्टर में लिखा है ना सर? कहाँ? यहाँ पर नीचे नीचे। यहाँ पर यस यहाँ पर कहाँ पर? यस यस ऊपर। स्टेटमेंट ऊपर नीचे मत बोलो, मुझे स्टेटमेंट बताओ, ऊपर नीचे मत बोलो, बी स्पेसिफिक। स्ट्रिंग कैट प्रिंट ऐसा बोलो ना कुछ। हाँ स्ट्रिंग कैट। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ बी टेक्निकली। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? प्रॉब्लम नहीं है सर, उधर लिखा है। हाँ फिर अरे मैं उसकी मेरा वजह से क्वेश्चन यहाँ क्या पे है राहुल मेरा, आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नेम में अगर सचिन है और नेम वन में राहुल है, तो यहाँ पर जब नेम प्रिंट कर दो सचिन राहुल कैसे आ रहा है वो पूछ। आपने कौन से बेसिस बोला कि यहाँ पर सचिन राहुल आया है? क्या वर्क यहाँ पर वर्किंग कैसे हो रही है बताओ? ठीक है नेक्स्ट चलो। हाँ हु वाज? हाँ किसको आंसर देना है, किसको इसका आंसर? यस सर। सर ये फर्स्ट वाले में सचिन राहुल रहेगा, बट सर उनके बीच में गैप नहीं रहेगा, एंड सेकंड वन में राहुल ही रहेगा। अच्छा
अविराज, ठीक है। देखो अभी जो आंसर विच आई हैव रिसीव्ड दैट इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है कि आपका देखो वर्किंग कैसे होता है, वर्किंग मालूम होना चाहिए। ये होता है राइट टू लेफ्ट, मतलब हम जब स्ट्रिंग कैट में जो पैरामीटर पास करते हैं, हमें 2 पैरामीटर पास किए, तो ये जो सेकेंड पैरामीटर दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद द फर्स्ट वन। तो नेम 1 का वैल्यू क्या था, नेम 1 का था राहुल था, तो ये जाके इधर से ऐसा क्या कंबाइन होता है, तो उसमें सचिन राहुल लाता है। जब हम नेम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब नेम 1 में नेम में क्या जाएगा, सचिन तो ऑलरेडी है उसमें, और ये जाके उसमें कंबाइन होगा तो सचिन राहुल होगा। लेकिन हम जब नेम 1 को प्रिंट करेंगे तो नेम 1 का वैल्यू तो पहले एज इट इज जो था वही मिलेगा राहुल, ऐसा था वो। समझा क्या अभी नकुल? यस सर। तो जब आप इंटरव्यू में बोलोगे तो आपको आंसर ऐसे ये देने का है, मतलब टेक्निकल आंसर देने का है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी इसका भी एक होमवर्क करना है आपको, सेम है, खाली आपको एक्सेप्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये थर्ड वाला। Last is what fourth function is string CPY, मतलब क्या, string copy. So it is used to copy the given string. ठीक है, वेरी सिंपल। जिस तरह से अभी क्या होता है कि असाइनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड यू मे हैव फेस्ड, है ना। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स सपोज अभी कॉपी, तो कॉपी कहाँ नहीं होता है, कॉपी पेस्ट हर जगह पे होता है। तो इसके लिए क्या लगता है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड प्रीरिक्विजिट फॉर दिस? वन इज व्हाट वी फर्स्ट यूज इन द सिंटैक्स, so it is very easy to understand syntax for the strcpy function. strcpy, then string 1, string 2. So this is what the string copy function का syntax, string 1 string 2 copy करने के लिए। Now let us take an example. So we are declaring another string name, suppose equal to hello. We are declaring hello. Now we are using what, string copy. Now according to the syntax, you can see over here the syntax is given. So we are saying that name comma name 1. Now the question is that, see, it is very clear that from the syntax we should have 2 strings. ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम में या कहीं क्या करते हैं, असाइनमेंट में क्या होता है कि हम लोग एक लिखता है, one has written something, suppose some assignment, and the another student has to, or another person has to copy that in general. So he has to keep his paper as a blank, so he can or she can copy that content
फ्रॉम द प्रीवियस वन और हु हैज रिटर्न इट। तो वैसे ही होता है यहाँ पर। क्या हुआ, एक स्ट्रिंग में हमने क्या किया है, एक वैल्यू असाइन किया है, वो जो कॉपी करना है। तो दूसरा हमारे पास एक स्ट्रिंग होना चाहिए, दैट शुड बी द एम्प्टी स्ट्रिंग। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर मेकिंग सम चेंजेस इन दैट name one, and we are not assigning any value to that. Why? Because what is our aim? We have to copy the string into what, another string, another empty string. So अगर आप यहाँ पे ऐसा करते हो, so what is the problem like this? Suppose मैंने यहाँ पे word लिख दिया, word। अगर मैं ये क्या करता हूँ, सपोज आई एम ट्राइंग टू, सपोज प्रॉब्लम क्या होता है कि अब मुझे सपोज कुछ कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए एक्चुअली क्या होता है कि एक स्ट्रिंग एम्प्टी होना चाहिए, तो हम लोग उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वी आर कीपिंग दिस सेकेंड वाला स्ट्रिंग एज व्हाट, एम्प्टी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो हमारे पास अभी देखो नेम वन इधर कर रहा हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ पर नेम कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वी आर सेइंग दैट दिस वन। And finally, what we can do over here, enter percent s comma name. Can anyone guess me what will the output of this program? Can anyone guess me? Guess to करो at least. Is it new to everyone? Hello. Whatever I am teaching. सर हेलो। Hello. सर को हेलो बोल रहे हैं, आउटपुट हेलो बोल रहे हैं। सर आउटपुट बोल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, मुझे बोलो चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। और किसी को बोलना है कुछ, एनीवन? ओम शिंदे, ऋतिका पवन, ऋतिका तिलके, मानस राजपूत, no one want to speak, आदर्श कटियान, Yes, sir. how are you? Fine, sir. तो ये कैसे आउटपुट आता है आपको, Yes, sir. बताते क्यों नहीं फिर? Hello, sir. Is output. अविनाश कुमार, अमित कुमार, रिस्पॉन्स नहीं देते। ईशिता का, ईशिता प्रजापति, ईशिता, कैन यू हियर मी? Yes, sir. What is the output of this? Hello, Ida. Hello. कोमलगिरी, तो आपको इसका भी क्या करना है, इसका भी प्रोग्राम करना है। कौन सा करना है आपको? यूजर से वैल्यू लेने हैं और उसको मैं इधर लिख लेता हूँ डायरेक्ट। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग and copy it into another string. Copy it using strcpy। समझ में आया सभी को? Is it clear? Is it clear everyone? Yes or no? Yes, यस सर। अरे तुम इतना ठंडा कैसे पड़ गए सुबह सुबह? इतना एनर्जी होना चाहिए ना। अभी आपको क्या करना है, देखो, व्हाट इज योर टास्क? व्हाट इज योर टास्क? ये चार तो करने हैं, strleb लिब, है ना? ये एक हेडर फाइल है, मुझे मालूम है ना आप लोगों को। इसके आपको चार फंक्शन निकालने हैं, चार फंक्शन। और strmat मैथमेटिक्स, इसमें से भी आपको चार फंक्शन निकालने हैं और उसके प्रोग्राम से लिखने हैं। ये आपका असाइनमेंट में आएगा,
ठीक है, तो कितना हुआ टास्क, कितने हो गए? ये 4 प्रोग्राम जो दिए मैंने वो, ये 4 फंक्शन एंड देयर प्रोग्राम, ये भी एंड देयर प्रोग्राम. इज इट क्लियर एवरीवन? हैव यू नोटेड? Yes. तो ये नेक्स्ट सेशन में होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास तक. मैं किसी को रैंडमली कॉल करूंगा, उसके बाद ये होना चाहिए, एंड ही और शी हैज टू शेयर द थिंग्स एंड एक्सप्लेन इट. उसके मार्क्स होंगे. समझ में आया अविराज? यस सर. अटेंडेंस मेंटेन करा ना, अटेंडेंस? यस सर, वो लास्ट 2 दिन का रह गया है, बस आप वो भेज दीजिए सर, डाउनलोडेड. ठीक है, भेजता हूँ, लेकिन ये सब नोट डाउन कर लो, क्या लिखे मैंने टाइप किया है पर. एवरीवन नोट डाउन इट. स्ट्रिंग लीव फंक्शन है जो अपना हेडर फाइल है, उसके 4 फंक्शन कोई भी और उसके प्रोग्राम करना है. और स्ट्रिंग मैट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया कुछ, सॉरी. एसटीडी ऐसा लिखो, मतलब आपको कंफ्यूज मैथ हेडर फाइल ना, मैथ एक्चुअली मैथ, तो हम लोग मैथ. तो ये नोट डाउन कर लो सभी ने, इसके 4 फंक्शन, इसके 4 फंक्शन एंड देयर प्रोग्राम. हैव यू टेकन? हैव यू नोटेड एवरीवन? शो योर थंब. Yes, sir. ठीक है, आई एम स्टॉप शेयरिंग, जस्ट अ मिनट, डोंट गो एनीवेयर, आई एम टेकिंग द डाउनलोडिंग अटेंडेंस. ठीक है, चलो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे. प्रैक्टिकल कब है अपना? मंडे को रहता है ना? ठीक है, खुश रहो. ठीक है, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.